رات کے گہرے سناٹے میں دہلی گیٹ کے پراسرار مکان کا وہ کمرہ جہاں عاصم پھنس چکا تھا، خوف کی ایک ایسی دنیا بن چکا تھا جہاں ہر سانس ایک امتحان تھی۔ آئینے سے باہر نکلتی ہوئی عورت جس کی سرخ آنکھیں عاصم کو گھور رہی تھی اب اس کے بالکل قریب تھی۔ اس کی لمبی سیاہ زلفیں ہوا میں لہرا رہی تھی، حالانکہ کمرے میں ہوا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ عاصم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ اب ہلکی ہلکی ٹمٹما رہی تھی۔ اس کی آواز اس کے گلے میں دب چکی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس مکان کی اس شیطانی طاقت کا شکار بننے والا ہے۔ لیکن عاصم وہ لڑکا نہیں تھا جو آسانی سے ہار مان لے۔ اس نے اپنی ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس خوفناک صورتحال سے لڑے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ عاصم نے آئینے سے نظریں ہٹائی اور اپنی ٹارچ کو مضبوطی سے پکڑا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ سب واہمہ ہے عاصم، تو ایک سائنس کا طالب علم ہے، بھوتوں پر یقین نہیں کرتا، یہ کوئی چال ہے اور تو اسے سمجھ لے گا۔ لیکن اس کی باتوں نے اس کے دل کو سکون دینے میں زیادہ مدد نہ کی، کیونکہ اسی لمحے کمرے کی دیواروں سے ایک عجیب سی آواز آنے لگی، جیسے کوئی دھات کو کھرچ رہا ہو۔ آواز اتنی خوفناک تھی کہ عاصم کے ہاتھ سے ٹارچ گرتے گرتے بچ گئی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آئینے کے سامنے والی کرسی جس پر وہ پھٹی ہوئی گڑیا پڑی تھی اب خالی تھی، گڑیا غائب تھی۔ عاصم کا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی کمرے کے ساتھ کے کونوں میں پھیرنی شروع کی، لیکن گڑیا کہیں نظر نہ آئی۔ اسی دوران اسے ایک ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی، ایک بچے کی ہنسی جو اتنی معصومانہ تھی کہ اس نے عاصم کے خوف کو اور بڑھا دیا۔ کون ہے وہاں؟ عاصم نے چیخ کر کہا، لیکن اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے ایک سردی کا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کے بالکل قریب کھڑا ہو۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا تو اس عورت کا سایہ ابھی بھی وہاں تھا، اور اس بار وہ اور قریب آ چکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اب زیادہ واضح تھی اور اس کے دانت جو غیر فطری طور پر نوکیلے تھے عاصم کو صاف نظر آ رہے تھے۔ تم کون ہو؟ عاصم نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تم یہاں کیوں آئے؟ اس عورت کی آواز ایسی تھی جیسے وہ برف کے ٹکڑوں سے بنی ہو، سرد، کھوکھلی اور خوفناک۔ عاصم نے اپنی جیب سے وہ چھوٹی سی چھری نکالی جو اس نے اپنے والد سے لی تھی۔ مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، اس نے ہمت سے کہا، لیکن اس کی آواز میں کانپاہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ عورت کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی اور اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے آگے بڑھایا۔ اس کا ہاتھ ایسی سفید روشنی سے چمک رہا تھا جیسے وہ کوئی غیر فطری چیز ہو۔ عاصم نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اسے لگا کہ کوئی اسے اپنی جگہ پر روک رہا ہے۔ عاصم نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور آئینے سے نظریں ہٹا کر کمرے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس نے دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا، لیکن وہ نہیں کھلا۔ اسی دوران اسے وہ سرگوشیاں دوبارہ سنائی دینے لگی، لیکن اب وہ زیادہ واضح تھیں۔ تم ہمارے ہو، تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ عاصم نے اپنا موبائل نکالا، لیکن اس کی اسکرین پر عجیب سے نشانات بن رہے تھے، وہی دائرے اور مثلثوں والے نشانات جو اس نے باورچی خانے میں دیکھے تھے۔ اچانک موبائل کی اسکرین بند ہو گئی اور کمرے کی روشنیاں مکمل طور پر بجھ گئیں۔ اب عاصم مکمل اندھیرے میں تھا، صرف اس کی ٹارچ کی ہلکی سی روشنی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی کمرے کے کونوں میں پھیرنی شروع کی اور اسے وہ پھٹی ہوئی گڑیا دوبارہ نظر آئی، لیکن اس بار وہ کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، جیسے کوئی اسے وہاں رکھ کر گیا ہو۔ اس کی واحد آنکھ عاصم کو گھور رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے وہ کوئی راز جانتی ہو۔ عاصم نے اپنی چھری مضبوطی سے پکڑی اور آہستہ سے گڑیا کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، گڑیا اچانک زمین پر گر گئی اور اس کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکلی، جیسے کوئی بچہ چیخ رہا ہو۔ عاصم فوراً پیچھے ہٹا۔ اس نے اپنی ٹارچ کی روشنی گڑیا پر ڈالی، لیکن وہ اب وہی پڑی تھی، جیسے کبھی ہلی ہی نہ ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا،
लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कमरे के कोने में एक छोटी सी अलमारी देखी जो दीवार से लगी हुई थी। उसने अलमारी खोली तो उसे एक पुराना संदूक मिला जिस पर वही अजीब से निशानात कंदा थे। संदूक को खोलते ही उसे कुछ पुराने खतूत और एक छोटी सी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक औरत थी जिसकी सुर्ख आंखें और लंबी जुल्फें उस औरत से मिलती जुलती थी जो उसे आईने में नजर आई थी। आसिम ने टॉर्च की रोशनी में खतूत पढ़ने शुरू किए। खतूत एक खातून के नाम लिखे गए थे जिसका नाम जहरा था। खतूत में लिखा था कि जहरा उस खानदान की सबसे बड़ी बेटी थी जो कई दिहाइयों पहले इस मकान में रहता था। एक खत में लिखा था, जहरा, हमने तुमसे कहा था कि इस ताकत से दूर रहो, लेकिन तुमने हमारी बात ना मानी। अब ये मकान हमारा नहीं रहा। वो हर रात आती है और उसकी सुर्ख आंखें हमें सोने नहीं देती। अगर कोई ये खत पढ़ रहा है तो खबरदार, इस मकान से भाग जाओ और वो तुम्हें भी अपना शिकार बना लेगी। आसिम के हाथ कांपने लगे। उसने खतूत को वापस संदूक में रखा और सोचा कि अब उसे यहां से निकलना होगा। लेकिन उसी लम्हे कमरे की दीवारों से वही खर्चने वाली आवाज दोबारा शुरू हुई और इस बार वो इतनी बुलंद थी कि आसिम के कानों में दर्द होने लगा। उसने अपने कान बंद किए लेकिन आवाज रुकी नहीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने आईने की तरफ देखा तो वो औरत अब आईने से बाहर निकल चुकी थी और उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। जहरा की सुर्ख आंखें आसिम को घूर रही थी और उसकी मुस्कुराहट अब एक शैतानी हंसी में बदल चुकी थी। उसका चेहरा सफेद था जैसे उसमें खून का एक कतरा भी ना हो। उसकी जुल्फें हवा में लहरा रही थी और उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता आसिम की तरफ बढ़ रहे थे। तुम यहां क्यों आए? उसकी आवाज अब और ज्यादा खौफनाक थी, जैसे वो आसिम के दिल में खौफ भर रही हो। आसिम ने अपनी छड़ी आगे की लेकिन उसे लगा कि उसका हाथ बेजान हो रहा है। मैं बस एक चैलेंज के लिए आया था, आसिम ने हकलाते हुए कहा। मैंने सोचा ये सब अफवाहें हैं। जहरा की हंसी और बुलंद हुई और उसने कहा, अफवाहें? ये कोई अफवाह नहीं आसिम, ये मकान मेरा है और अब तुम भी मेरे हो। उसकी बात सुनकर आसिम के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसने एक बार फिर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। इसी लम्हे कमरे की रोशनियां दोबारा टिमटिमाने लगी और आसिम को लगा कि कमरा घूम रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को समझाया कि ये सब एक ख्वाब है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो जहरा अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी सुर्ख आंखें आसिम के चेहरे से सिर्फ चंद इंच दूर थीं और उसकी सांस आसिम के चेहरे पर ठंडी हवा की तरह महसूस हो रही थी। आसिम ने अपनी सारी हिम्मत जमा की और जहरा से नजरें मिलाई। उसकी सुर्ख आंखें उसे घूर रही थीं, लेकिन आसिम ने फैसला किया कि वो खौफ के आगे हार नहीं मानेगा। उसने अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ा और जोर से चीखा, तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी और एक लम्हे के लिए जहरा का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो आसिम की हिम्मत से हैरान हो। लेकिन ये सुकून सिर्फ एक लम्हे का था। अचानक कमरे की दीवारों से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। आसिम ने टार्च की रोशनी उधर फेरनी शुरू की और उसे कमरे के कोने में वही फटी हुई गुड़िया नजर आई, लेकिन उस बार उसकी वाहिद आंख खून से लाल थी। आसिम ने फौरन नजरें हटाईं और जहरा की तरफ देखा, लेकिन वो अब आईने के अंदर वापस जा चुकी थी। उसकी हंसी अब भी कमरे में गूंज रही थी, लेकिन वो खुद कहीं नजर ना आई। आसिम ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि अब उसे यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसने दरवाजे की तरफ दोबारा दौड़ लगाई, लेकिन इस बार दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। उसे यकीन नहीं आया कि दरवाजा इतनी आसानी से खुल गया, लेकिन उसने ज्यादा सोचने के बजाय फौरन राहदारी की तरफ भागना शुरू किया। राहदारी में अंधेरा छाया हुआ था और उसकी टॉर्च की रोशनी अब तकरीबन खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी जेब से इजाफी बैटरियां निकाली, लेकिन जब उसने टॉर्च खोलने की कोशिश की तो उसके हाथ
कांप रहे थे। राहदारी के आखिर में वही सीढ़ियां थीं जो ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन आसिम ने देखा कि सीढ़ियों के नीचे वाला छोटा सा दरवाजा जो तह खाने की तरफ जाता था अब खुला हुआ था। उसे याद आया कि जब वो पहली बार हॉल में दाखिल हुआ था तो ये दरवाजा बंद था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वाहिद रास्ता है। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों के नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां पुरानी और लकड़ी की थीं और हर कदम पर अजीब सी आवाज पैदा होती थी। तह खाने में पहुंचते ही आसिम को एक अजीब सी बदबू ने घेर लिया। ये बदबू ऐसी थी जैसे कोई चीज बरसों से सड़ रही हो। उसने टॉर्च की रोशनी फेरनी शुरू की और उसे एक बड़ा खाली कमरा नजर आया। कमरे के बीच में एक पुराना आयरन का संदूक था जिस पर जंजीरें लपेटी हुई थी। संदूक के गिर्द जमीन पर अजीब से निशानात बने हुए थे, वही दायरे और मुसल्लसों वाले निशानात जो उसने पहले देखे थे। आसिम ने आहिस्ता से संदूक के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन इसी लम्हे उसे एक बच्चे की हंसी दोबारा सुनाई दी, और उस बार वो इतनी करीब थी कि आसिम के कानों में गूंज उठी। उसने टॉर्च की रोशनी उधर उधर फेरनी शुरू की और उसे तह खाने के कोने में एक छोटी सी लड़की का साया नजर आया। लड़की की शक्ल वही फटी हुई गुड़िया से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसका चेहरा एक खौफनाक खौम थी, मुस्कुराहट से भरा हुआ था। आसिम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में दब गई। लड़की आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसके कदमों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसकी आंखें आसिम को घूर रही थी और उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे वो कोई शैतानी राज छुपा रही हो। तुम कौन हो? आसिम ने हकलाते हुए पूछा। लड़की ने कोई जवाब न दिया, लेकिन उसकी हंसी और बुलंद हो गई। अचानक तह खाने की दीवारों से खून के धब्बे निकलने लगे और आसिम को लगा कि कमरा छोटा होता जा रहा है। उसने अपनी छड़ी उठाई और लड़की की तरफ इशारा किया। दूर रहो, उसने चीख कर कहा, लेकिन लड़की अचानक गायब हो गई और उसकी जगह जहरा का साया दोबारा नमूदार हुआ। जहरा अब तह खाने के बीच में खड़ी थी और उसके हाथों में वही फटी हुई गुड़िया थी। तुमने हमारा राज देख लिया आसिम, जहरा ने कहा। उसकी आवाज अब इतनी बुलंद थी कि तह खाने की दीवारें कांपने लगी। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। आसिम ने अपनी सारी हिम्मत जमा की और संदूक की तरफ भागा। उसने जंजीरें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी मजबूत थी कि हिल न सकी। उसी दौरान उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने फौरन मुड़कर देखा और इस बार जहरा उसके बिल्कुल सामने थी। उसकी सुर्ख आंखें अब आग की तरह चमक रही थी और उसका चेहरा एक खौफनाक शक्ल में बदल चुका था। आसिम अब तह खाने में फंस चुका था। उसकी टॉर्च की रोशनी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी और वो अंधेरे में जहरा के सामने खड़ा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा करीब आ रहा है, लेकिन उसी लम्हे उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। उसने आहिस्ता से मुड़कर देखा और उसे तह खाने के कोने में एक छोटा सा दरवाजा नजर आया जो अब खुला हुआ था। जहरा की हंसी अभी भी गूंज रही थी, लेकिन वो खुद कहीं नजर न आई। आसिम ने अपनी आखिरी हिम्मत जमा की और उस दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। उसने मुड़कर देखा और उस बार जहरा उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी सुर्ख आंखें अब उसके चेहरे से सिर्फ चंद इंच दूर थी। तुम कहीं नहीं जा सकते आसिम, उसने कहा और उसकी हंसी तह खाने में गूंज उठी। आसिम अब तह खाने में फंस चुका था। उसकी टॉर्च की रोशनी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी और वो अंधेरे में जहरा के सामने खड़ा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा करीब आ रहा है, लेकिन उसी लम्हे उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। उसने आहिस्ता से मुड़कर देखा और उसे तह खाने के कोने में एक छोटा सा दरवाजा नजर आया जो अब खुला हुआ था। जहरा की हंसी अभी भी गूंज रही थी, लेकिन वो खुद कहीं नजर ना आई। आसिम ने अपनी आखिरी हिम्मत जमा की और उस दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा,
اسے لگا کہ کوئی اسے پیچھے کھینچ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اس بار زہرا اس کے بالکل قریب تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اب اس کے چہرے سے صرف چند انچ دور تھی۔ تم کہیں نہیں جا سکتے عاصم، اس نے کہا اور اس کی ہنسی تہہ خانے میں گونج اٹھی۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ کیا عاصم اس تہہ خانے سے نکل پائے گا یا وہ زہرا اور اس کی شیطانی طاقت کا شکار بن جائے گا۔ کیا وہ چھوٹا سا دروازہ اس کی نجات کا راستہ ہے یا اس مکان کا ایک اور خوفناک راز؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔